Heartiest congratulations to all the CA Foundation students, those who have cleared this attempt. But friends, this is not the end. You know what I mean. The journey has just begun. Friends, if you are aiming to become CA, if you want to achieve the title CA, the ultimate success, then friends, you should be obsessed with the process of becoming CA. And what is this process? What is the next step in your journey? And this is what I'm going to tell you in this video. Friends, myself, CA Devangi Shah, and I teach the subject Cost and Management Accounting at InterCA and Strategic Cost Management and Performance Evaluation at CA Final. And in this video, I'm going to guide you for the preparation, how to start with InterCA. Before you start studying, you should have thorough knowledge of the subjects and the marks and the approach of each subject. So friends, welcome to InterCA. In InterCA, friends, there are total 2 groups. Group 1 has got 4 papers. Group 2 also has 4 papers. Each paper is of 100 marks. In Group 1, you have accounts, paper 1, paper 2 law, paper 3 costing, paper 4 taxation. In Group 2, you have paper 5 advanced accounts, paper 6 audit, paper 7 EIS and SM, paper 8 FM and economics for finance. Now what are these FM, EIS? I'll tell you. Friends, EIS is enterprise information system. It is just like your information technology. SM is strategic management. FM is financial management. Okay, so these are the 8 subjects in your InterCA. Now how about the paper pattern? ICI कैसे questions पूछता है? So let me tell you, out of the total 8 subjects, in 4 subjects you have some part as MCQs. तो कौन से पेपर में कितने मार्क्स के लिए आता है? तो पेपर 2 लॉ, पेपर 4 टैक्सेशन, पेपर 6 ऑडिट, पेपर 7 EIS and SM. इन चारों सब्जेक्ट में टोटल 30 मार्क्स MCQs होता है और 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है. डिस्क्रिप्टिव मीन्स either there will be sums or the answers, theoretical answers that you need to write. So this is about the 4 papers. And in other 4 papers, that is paper 1 accounts, paper 3 costing, paper 5 advanced accounts, paper 8 FM and eco, इसमें आपको 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा. There will be no MCQs. Okay? तो ये पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा. तो जब आप प्रिपेयर करोगे तो आपको MCQs का प्रिपरेशन एक अलग से करना पड़ेगा. देन ओनली यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट. वो कितने ट्रिकी होते हैं, वो कितने एम्बिगियस होते हैं, वो तुम अगर MCQs ही पढ़ोगे तभी तुमको पता चलेगा. सो देयर शुड बी स्पेशल प्रिपरेशन फॉर दिस. राइट फ्रेंड्स, अगर ये आप क्रैक कर पाते हो तो फ्रेंड्स कितना अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता है कि हर सब्जेक्ट का पासिंग मार्क्स कितना होता है 40. राइट, सब्जेक्ट्स वाइज पासिंग होता है 40 और 30 MCQs मिल गया तो यार इट इज अ ट्रेजर. राइट, तो यू शुड डू स्पेशल प्रिपरेशन फॉर दीज MCQs इन ईच ऑफ दीज सब्जेक्ट्स. ओके, अब बात करते हैं पासिंग परसेंटेज की. आपको तो ये पता ही होगा दैट ईच सब्जेक्ट पासिंग इज 40%, but aggregate total for the group has to be 50%. right, so let me tell you, each group is of 400 marks. right, 100 each. right, so you should get 200. same with this, you should get 200. but अगर आप दोनों ग्रुप साथ में देते हो फ्रेंड्स, अगर आप दोनों ग्रुप साथ में देते हो तो अगर आपको इसमें 199 मिला, 200 नहीं 199 मिला, और आपको ग्रुप 2 में 201 मिला, तो टोटल आपका हो गया ना 400 आउट ऑफ द टोटल 800 मार्क्स एग्जाम्स. राइट, सो दिस इज व्हाट आई रिकमेंड फ्रेंड्स, दोनों ग्रुप साथ में दो, बिकॉज देर आर चांसेस ऑफ सेट ऑफ. अगर आप ग्रुप 1 में 200 नहीं ला पाते तो ग्रुप 2 के मार्क्स आपको हेल्प कर देंगे. राइट, अगर आप ग्रुप 2 में 200 नहीं ला पाते तो ग्रुप 1 के मार्क्स आपको हेल्प कर देंगे. तो अगर आप ग्रुप वाइज दे रहे हो तो 200 तो लाना ही है.
बट अगर आप दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हो तो टोटल शुड बी 400. ठीक है, सो द पॉइंट इज each subject 40%, aggregate for the group 50%, right? If you're giving both the groups, total 50% आपको लाना है. Got it friends? So this is the passing criteria. अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की. तो फ्रेंड्स मैं सब्जेक्ट वाइज बता दूं. पेपर 1 अकाउंट्स जो होता है, अकाउंट्स में आपको वैसे ही पढ़ना है जैसे अब तक आप अकाउंट्स पढ़ते आए हो. ठीक है, क्वेश्चन रहेगा, उसको सॉल्व करना है, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, वो सब आपको पता है. सो द अप्रोच शुड बी कंटिन्यूड एज यू वर डूइंग इन योर 11th 12th CA फाउंडेशन एंड सो ऑन. ऑब्वियसली द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द लेंथ ऑफ द सम विल इंक्रीज. ओके, देन द नेक्स्ट पेपर इज पेपर 2 लॉ. इस सब्जेक्ट में आपको सेक्शंस का क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सो दैट यू आर इन पोजीशन टू इंटरप्रीट द सेक्शन एंड अप्लाई टू द केस सिनेरियोज. ठीक है, देन कम्स पेपर 3 कॉस्टिंग. इस सब्जेक्ट में आपके लॉजिक्स बड़े क्लियर होने चाहिए बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड द कंसेप्ट देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड द कैलकुलेशंस इन कॉस्टिंग. ओके, देन कम्स पेपर 4 टैक्सेशन. टैक्सेशन में ना फ्रेंड्स आपको बता दूं, पेपर 4 टैक्सेशन में 2 टाइप के टैक्स रहेंगे. वन इज इनकम टैक्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, एंड अदर इज इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, जो इनकम टैक्स है वो 60 मार्क्स का होगा और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो 40 मार्क्स का होगा. ठीक है, टोटल 60 मार्क्स 40 मार्क्स. अब जैसे मैंने ऊपर बताया कि टैक्सेशन में 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं और 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है. तो ये जो 30 मार्क्स एमसीक्यूज है क्या वो इनकम टैक्स का होगा, डीटी का, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स का होगा कि कॉम्बिनेशन होगा? ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन होगा. तो MCQs कितना रहेगा? Let me tell you, 18 marks of MCQs will be there and your 12 marks MCQs will be there. And balance paper यानी 42 marks descriptive and your 28 marks will be descriptive. So this will be your paper pattern for taxation. ठीक है, इनकम टैक्स 18 मार्क्स एमसीक्यूज, 42 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव, डी इनडायरेक्ट टैक्स 12 मार्क्स एमसीक्यूज एंड 28 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहेगा. फ्रेंड्स इसमें भी सेम वे आई विल टेल फॉर लॉ. जैसे मैंने लॉ के लिए बताया था कि आपको इसमें भी हर सेक्शन के प्रोविजंस को समझना है, काफ़ी क्लैरिटी डेवलप करनी है सो दैट यू आर इन पोजिशन टू आंसर द क्वेश्चंस एंड सॉल्व द सम्स. ओके, तो ये बात हो गई हमारे ग्रुप 1 की. Okay, then we come to group 2 advanced accounts. Just like accounts आपको वही अप्रोच फॉलो करना है. पेपर 6 इज ऑडिट. ऑडिट में 30 मार्क्स अगेन MCQ, 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव. EIS SM सेम वे फ्रेंड्स. अब इसमें जो बाइफिकेशन है वो 50-50 का है. पेपर 7 EIS एंड SM. इसमें जो EIS है फ्रेंड्स ये 50 मार्क्स का है और जो SM है ये भी 50 मार्क्स का है. तो इसमें से MCQs कैसा रहेगा? 15 मार्क्स 15 मार्क्स, इक्वल डिवीजन. एंड डिस्क्रिप्टिव 35 मार्क्स 35 मार्क्स. गॉट इट? तो दिस विल बी द paper pattern and of course your approach should be such that you are in position to answer both. MCQs का पढ़ाई अलग से करो, ठीक है, ताकि वो जो ambiguity आती है वो तुमको पहले से पता हो. And then paper 8 is FM and economics for finance, financial management and economics for finance. FM तो पूरा प्रैक्टिकल है. इकोनॉमिक्स में आपको एक आधा सम आ जाएगा और थोड़ी बहुत थियोरी भी है. इकोनॉमिक्स आपको पता है बट ये फाइनेंशियल वाला इकोनॉमिक्स है. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. तो फ्रेंड्स दिस इज अबाउट द सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2.
आपको हर सब्जेक्ट में क्या कैसे पूछेंगे और आपको कैसे पढ़ना है ये बता दिया। अब जब आप इंटर सीए में आ गए हो, आपको पता चल गया कि कौन से सब्जेक्ट से उसका अप्रोच क्या है, तो अब हम पढ़ाई स्टार्ट कैसे करें। तो फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, मार्केट में ना जो भी प्रोफेसर्स है, जो भी क्लासेस है, उसमें आपको 2 टाइप्स का मिलेगा, राइट। जैसे अपन अभी होटल में जाते हैं तो हमको एक थाली सिस्टम होता है और दूसरा बुफे सिस्टम, राइट। तो हम थाली में क्या है कि जो फिक्स्ड मेनू है वही खा सकते हैं, और बुफे में हमको जो पसंद है वो हम खा लें, राइट। तो जो क्लासेस होते हैं, जो ऑल सब्जेक्ट्स ऑफर करते हैं, आप उसमें जाओगे तो आपको फिक्स्ड फैकल्टी होगी, आपको उसी से पढ़ने मिलेगा, आपको उसमें फैकल्टी चूज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता। बट अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में मार्केट में लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो। इन दैट केस यू शुड नॉट गो फॉर क्लासेस। आप अपने हिसाब से प्रोफेसर सिलेक्ट कीजिए, उनका कोर्स लीजिए, इधर इट विल बी लाइव, इट विल बी वर्चुअल लाइव, या फिर रिकॉर्डेड सेशंस होगा, ठीक है, या फिर फेस टू फेस होगा। जो भी आपको प्रेफर्ड ऑप्शन है वो सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो सो दिस इज द कंक्लूजन कि यार कि क्लासेस में जाओ या फिर इंडिविजुअल प्रोफेसर से आप पढ़ाई कर सकते हो, ओके। एंड जब भी आप पढ़ाई करोगे, कोई क्लासेस से करोगे या कोई प्रोफेसर से लोगे, तो फ्रेंड्स आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि अप टू 31st of July, right, 31st of July, the last day, right, आपका सारा पोर्शन खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। व्यूइंग द लेक्चर्स खत्म हो जाए, क्लासेस में भी खत्म हो जाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स इस डेट तक। उससे पोर्शन बियॉन्ड मत खींचो, वरना फिर आपका सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलेगा, आपको रिवीजन का टाइम भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते, तो रिवाइज नहीं करते, तो फ्रेंड्स आपका जो पासिंग का चांसेस है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो व्हाट आई वुड एडवाइज इज अप टू 31st July कंप्लीट फुल पोर्शन ऑफ ईच सब्जेक्ट, ओके। फिर उसके बाद अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर 3 months you need for self study and revision. And friends, अगर आप इसका टाइम कम करोगे सेल्फ स्टडी और रिविजन का, तो आपका जो पासिंग का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होते जाएगा, ओके। तो ये बात हो गई। अब बोलोगे क्या 3 महीने में सेल्फ स्टडी रिविजन हो जाता है? तो लेट मी टेल यू, वैसे हो तो जाता है, पर जब आप ये 31st July तक पढ़ते हो, लेक्चर्स व्यू करते हो, तब तक 50% ऑफ ईच सब्जेक्ट ऐसा हो जाना चाहिए कि यार आई एम प्रिपेयर्ड फॉर ICI, ठीक है। ऐसा प्रिपरेशन करो 31st July तक। मतलब जैसे अभी कॉस्टिंग में मान लो 15 टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो 15 टॉपिक्स का लेक्चर व्यूइंग आपका जुलाई तक हो जाना चाहिए, ओके। बट ये 15 में से एटलीस्ट 7 या 8 ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए कि यू आर डन एंड डस्टेड, तुमको फुल कॉन्फिडेंस आ गया है। तो जो बैलेंस है ना 7-8 सब्जेक्ट, वो आप सेल्फ स्टडी और रिवीजन के टाइम उसको प्रैक्टिस करके उसका डेवलप कर सकते हो। गॉट इट फ्रेंड्स? तो इस तरह आपको पढ़ना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव गॉट व्हाट यू वांटेड एट दिस आवर, ठीक है। जस्ट आप CA इंटर में एंटर हुए हो, है ना। तो मैंने आपको अच्छी तरह गाइड कर दिया है कि कौन से सब्जेक्ट्स है, आप कैसे लेक्चर्स खरीद सकते हो, ओके। और फ्रेंड्स, आप कितना MCQs है, कितना डिस्क्रिप्टिव है, और सब्जेक्ट वाइज बता दिया है, और मैंने आपको पासिंग परसेंटेज का भी क्राइटेरिया बता दिया, ओके। नाउ चलो मैं बता देती हूँ कि हाउ आई कैन हेल्प यू। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देखने के बाद मेरा ऐप कॉस्टिंग बाय देवांगी डाउनलोड करो। एज आई टोल्ड यू, आई एम फैकल्टी फॉर द सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एट इंटर CA एंड स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एट CA फाइनल। तो इस ऐप में आप मेरे वीडियोस खरीद सकते हो। थ्रू दिस ऐप you can purchase the videos for November 22 exams of इंटर CA। अब जो मेरा इंटर CA कोर्स है उसमें क्या अवेलेबल है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। सो ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय द जर्नी, डोंट टेक स्ट्रेस फ्रॉम डे 1। यार काफी लंबा जर्नी रहने वाला है ये, ठीक है। तो डे 1 से स्ट्रेस मत लो। एज आई सेड, यू शुड लाइक द प्रोसेस, राइट। डेस्टिनेशन पर तो जाना ही है, तो लेट्स एंजॉय द जर्नी, राइट। सो दिस इज व्हाट योर अप्रोच शुड बी। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक फ्रेंड्स, सी यू।